Class 9 students, let me ask you something. Have you ever seen a question in your English exam that says, write a descriptive paragraph in 100 or 120 words and wondered कि exactly लिखना क्या है? Should you describe a person, a place, an event? पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए और exactly examiners को answer में क्या चाहिए? Don't worry because in today's video I am going to make descriptive paragraph writing extremely easy for you. Hello everyone, I am Kirti, your English educator from Planet Spark. In the next few minutes, we will learn कि descriptive paragraph actually होता क्या है और किस तरीके के questions exam में पूछे जाते हैं और आपको क्या structure follow करना है when you're answering the descriptive paragraph और क्या common mistakes हैं जो students करते हैं when they're writing the answer और एक sample question और answer भी देखेंगे. So quickly grab a pen and notebook and so let's begin. Now the first basic question is कि what exactly is a descriptive paragraph? Now before we do that, एक बार इस word का भी मतलब समझ लेते हैं कि क्या है. Now the word descriptive means giving a detailed account of something. Detailed account of something. कि किसी भी चीज के बारे में आप बहुत ही डिटेल में जब बात करते हो, that is the meaning of the word descriptive. तो descriptive paragraph क्या होगा? कोई भी एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आप बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता रहे हो. You are using adjectives, proper adjectives. You're using adverbs, strong adjectives and strong adverbs. अब पर्पस क्या है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का? आपको क्या करना है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कि आपको वो उस तरीके से लिखना है कि जो भी रीडर है जो उसको पढ़ रहा है दे शुड बी एबल टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ दैट इन देयर माइंड. मतलब वो उस चीज़ को एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन कर सके जैसे आपने उसको डिस्क्राइब किया है. दैट इज व्हाट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज एंड यू हैव टू राइट दैट ओनली इन वन पैराग्राफ. One paragraph only. So basically descriptive paragraph is a short piece of writing जहाँ पे आप describe करते हो कोई भी person, place, event या फिर object in a very clear, organized and structured way. Now like I said, purpose क्या होता है? To help the reader imagine what you're describing. आप जो भी describe कर रहे हो, it should help the reader imagine that as it is. That is the purpose of descriptive writing. Now आपको क्या चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो एक स्टोरी नहीं है, वो एक ऐसे नहीं है. इट इज़ जस्ट वन पैराग्राफ जो आपको लिखना है विद इन 100 to 120 वर्ड्स बिकॉज इतना ही वर्ड लिमिट होती है यूजुअली सीबीएसई में. तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. जस्ट 100 to 120 वर्ड्स एंड इट शुड ओनली बी वन पैराग्राफ. मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. नाउ मूविंग ऑन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रिगार्डिंग. नाउ द फर्स्ट टाइप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन. नाउ इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने को बोल देंगे. जैसे कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, और आपको अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के बारे में बात करनी है या फिर योर फ्रेंड और any famous personality or maybe your idol or somebody that you admire, right? So basically आपको describe करना है एक person को. तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें include कर सकते हो? You can include their name and age, अपीयरेंस जैसे कि वो बाहर से फिजिकली कैसे दिखते हैं, किस तरीके के बाल है, किस कलर के बाल हैं, आंखें कैसी हैं, हाइट कैसी है, राइट, लाइक बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. You can also talk about their personality traits कि उनकी personality कैसी है, like are they very confident, kind-hearted, or they are very sophisticated, or very curious, or by nature, right? तो उनकी personality के बारे में आपको बताना है. Then you can also talk about their habits. Usually हर एक इंसान की कुछ habits होती हैं, तो you can also include that in the answer, and you can end your answer by writing why you admire them. If you like them, right? तो आप last एक दो लाइन में लिख सकते हो कि आप उनको क्यों admire करते हो. What is it that you like about that person? Now second is description of a
प्लेस, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोई भी एक जगह दे देंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नाउ किस तरीके के प्लेसेस के बारे में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू डिस्क्राइब योर स्कूल, पार्क में भी, या फिर आपका होम टाउन, या फिर कोई भी न्यू ऑडिटोरियम, मे बी आपका स्कूल का ऑडिटोरियम ही, राइट। तो इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, जो भी जगह क्वेश्चन में पूछी गई है आपको उसकी लोकेशन बतानी है कि वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है, और अगर और कुछ लोकेलिटी है जो आप इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। फिर वो जगह दिखती कैसी है, कैसी दिखती है, लाइक इज इट ब्यूटिफुल, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गार्डन या एक पार्क के बारे में बात कर रहे हो, यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ कलरफुल एंड विविड फ्लावर्स इट हैज़, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, राइट। सो वो सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। देन यू हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट फीचर्स, जैसे अगर न्यू ऑडिटोरियम के बारे में बात कर रहे हो तो किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट है, कर्टन्स कैसे कलर के हैं, राइट, और स्टेज कैसा है। सो यू कैन टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर, कि प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है या फिर मोनोटनस है, जो भी जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, यू हैव टू ऑल्सो डिस्क्राइब दैट। नाउ थर्ड कम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। बहुत बार क्या करते हैं कि आपको कोई एक इवेंट दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मे बी अ फेस्टिवल, या फिर आपके स्कूल में कुछ फंक्शन सेलिब्रेट हुआ हो, या फिर रेनी डे, या फिर एनी मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब अ होल इवेंट। अब उसमें आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो चीज़ कैसे हुई, उसके इफेक्ट्स क्या रहे, उसका आउटकम क्या रहा, ओके। एट द लास्ट इज सिचुएशन और पिक्चर। बहुत बार आपको एक फोटो दे देंगे या फिर एक दो लाइन में आपको एक सिचुएशन दे देंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल हैव टू राइट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, फीलिंग्स, एक्शंस टेकन एंड द फाइनल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल नेबर लॉक्ड आउट ऑफ हाउस, राइट, तो इसमें आप नेबर की फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, एंड हाउ ही डेल्ट विद द सिचुएशन, और फाइनल आउटकम उस चीज़ का क्या रहा। सो दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर CBSE एग्जाम। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो एग्जैक्टली कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। तो सबसे पहले जो है आप करोगे उसका इंट्रोडक्शन, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है यू विल इंट्रोड्यूस दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू हैव टू टॉक अबाउट अ पर्सन, राइट, सो इन द few lines of the beginning you will talk about that person, कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। If you're talking about your brother, you'll write his name, कि आपको उससे क्या relation है, that sort of things। तो आप उसमें क्या include करोगे इंट्रोडक्शन में, who, what, where। अगर आप अपने ऑडिटोरियम के बारे में बात कर रहे हो, then you can write my school's new auditorium is situated at the center of the campus, right। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट या फिर पहली 2 लाइन्स में आपको उस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, टू मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हो इन दैट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नाउ द सेकेंड इज डिस्क्रिप्शन। अब इसमें आपको क्या करना है, नाउ प्लीज मेक श्योर, अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखना है। यू हैव टू ओनली राइट इन 1 सिंगल पैराग्राफ इन कंटिन्यूटी। तो उसके बाद आप क्या करने वाले हो, यू विल राइट की डिटेल्स, प्रॉपर डिटेल्स लिखोगे। अगर आप ऑडिटोरियम की बात कर रहे हो तो उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइटनिंग कैसी है, कुछ मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या नहीं है, तो यू कैन इंक्लूड दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ मॉडर्न लाइट्स एंड कुशन्ड सीट्स, इट होस्ट्स असेंबलीज वेरी स्मूथली। तो ऑफ कोर्स आप और लाइन्स लिख सकते हो, बट आई हैव ओनली रिटन दिस जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ द थर्ड टाइप इज कंक्लूडिंग लाइन। थर्ड में आपको क्या करना है, आप जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसको आपको कंक्लूड करना है। अगर कोई इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, कोई सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप एंड कर सकते हो विद अ फीलिंग, ओके। और अगर आप किसी भी प्लेस के बारे में बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा और अच्छे से उस चीज़ की तारीफ करते हुए यू कैन एंड दैट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अगर ऑडिटोरियम के बारे में ही बात करें तो यू कैन एंड इट बाय सेइंग इट्स अ स्पॉटलेस फैसिलिटी दैट इज द प्राइड ऑफ आवर स्कूल। सो दैट इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर इट। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करोगे, 1 or 2 लाइन्स डिस्क्राइबिंग द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। फिर कम्स द मिडिल पार्ट ऑफ इट जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताना है, एंड आफ्टर दैट कम्स द कंक्लूडिंग लाइन, द लास्ट लाइन जिसमें आप अच्छे से कंक्लूड करोगे। एंड इफ इट्स एन इवेंट तो यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट, व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, ऐसी भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन,
हाउ टू राइट द परफेक्ट आंसर, कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखे। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन दिखता है पेपर में और इमीडिएटली वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे आंसर लिखे, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सबसे पहली चीज़ है कि आप उस टॉपिक को समझो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट, कि क्वेश्चन में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। नाउ आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन डोंट स्टार्ट राइटिंग एट द सेम मोमेंट। एकदम क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर लिखना स्टार्ट कभी नहीं करना है। आप 1 या 2 मिनट लो एंड राइट डाउन 3 और 4 की पॉइंट्स जो आप इंक्लूड करना चाहते हो अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, राइट, तो आप पहले अपने दिमाग में सोचो एक बार कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कि उनका नेम, एज और देयर ऑक्यूपेशन और लाइक व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, उनकी अपीयरेंस कैसी है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, एनी फ्लॉज इफ दे हैव, राइट, एंड व्हाई यू एडमायर देम। तो आपके दिमाग में ये सर्टेन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। वंस यू थॉट अबाउट दैट, आपको उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करना है बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूडिंग लाइन। मेक श्योर कि आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपना आंसर लिखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको फैंसी वर्ड्स लिखना ही लिखना है। डोंट मेक योर आंसर्स कॉम्प्लिकेटेड, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर्स लव क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल आंसर्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करो और सिंपल सेंटेंसेस में यू राइट डाउन द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज फॉलो द वर्ड लिमिट विच इज़ 100 to 120 वर्ड्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेक श्योर यू प्रैक्टिस राइटिंग इट एज वेल, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितने लाइंस में आपके 100 और 120 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। बिकॉज एग्जाम में आप गिनने नहीं बैठोगे कि 120 वर्ड्स हो गए हैं या नहीं हो गए। सो टू हैव अ रफ आइडिया, मेक श्योर कि आप पहले ही रिटन प्रैक्टिस जब कर रहे हो, सी कि आप कितनी लाइन्स में 100 या 120 वर्ड्स सम कर पा रहे हो, एंड उतनी ही लाइन आपको एग्जाम्स में लिखनी है। नाउ मूविंग ऑन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या गलतियां करते हैं व्हेन दे आर राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। एक स्टोरी की तरह लिखने लग जाएंगे, स्पेशली जब भी कोई उनको इवेंट या सिचुएशन दिया होता है, स्पेशली देन दे स्टार्ट राइटिंग इट एज अ स्टोरी। आपको हमेशा याद रखना है, इट इज़ नॉट अ स्टोरी राइटिंग, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको बस डिटेल्स देनी है, स्टोरी नहीं बनानी है। यू डोंट नीड टू इंक्लूड अ प्रॉब्लम, कैरेक्टर, सेटिंग, सोल्यूशन, क्योंकि वो एकदम ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट। बहुत बार जो है उस आंसर को बहुत छोटा लिख देंगे, बहुत बड़ा लिख देंगे। उसके लिए मैंने अभी आपको एक टिप दी है, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट। द नेक्स्ट इज कि बहुत ही बड़ा सा सेंटेंस या बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस लिख देंगे। मेक श्योर कि आप अपने सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करो अच्छे से। अगर सेंटेंस बहुत बड़ा हो रहा है तो ब्रेक इट इनटू 2, ओके। आप उसको डिवाइड कर सकते हो, उस आइडिया को डिवाइड कर सकते हो इन 2 सेंटेंसेस। नाउ रिपीटिंग द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, वही सेम वर्ड्स मत यूज करो। अगर आप पार्क को डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर यू आर डिस्क्राइबिंग अ गार्डन, प्लीज डोंट कीप राइटिंग ब्यूटिफुल। You can use words like gorgeous, pleasant, mind-blowing. I was delighted to visit the garden. I was amused by its beauty. राइट, तो आप ये सब वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। डोंट यूज़ द वर्ड ब्यूटिफुल अगेन एंड अगेन। इतना अगर रेपिटेशन होता है तो इवन द एग्जामिनर गेट्स बोर्ड while reading your answer. Now the next is ending the paragraph suddenly without a conclusion. बहुत बार क्या होता है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसको एंड कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जस्ट फॉलो दैट स्ट्रक्चर। कोई एब्रप्ट एंडिंग नहीं लिखनी है कि एकदम से ऐसे ही छोड़ दिया है। मतलब आई नो इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एंड द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, बट मेक श्योर कि आप एक कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर लिखो इन द एंड ऑफ द आंसर. And of course, a pro tip for you, always finish with a proper concluding line to give your paragraph a complete feel. Now, the next is sample questions and ideas. Let's look at the kind of questions आपसे पूछ सकते हैं कि आपको अपना pet describe करना है, या फिर you need to describe a wild bird, maybe describe a recent rainy day, describe your school's workers day celebration, या फिर describe your school's new auditorium, describe your brother, sister or cousin. अगर आप notice करोगे तो ये सब questions उसी 4 टाइप में से हैं जिसमें
जो अभी हमने डिस्कस किया है पहले, राइट? सो यू कैन मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है अगर इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ मॉडल आंसर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. आपको डिस्क्राइब करना है एक रेनी डे. द टॉपिक इज अ रेनी डे. तो हम एकदम से आंसर लिखना नहीं शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द 3 or 4 पॉइंट्स दैट वी विल कीप इन माइंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. जैसे कि हाउ द वेदर डेवलप्ड, कैसी बारिश हुई, लाइक हाउ डिड इट रेन, लाइक डिड इट रेन हेविली, उसके इफेक्ट्स क्या हुए मे बी ऑन पीपल, एंड द रिजल्ट और आउटकम ऑफ इट. नाउ वंस you've thought of these things कि मुझे ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने आंसर में, आफ्टर दैट you'll start writing the paragraph and you'll start with talking about how the weather developed. So let's read it. Last Sunday the sky suddenly became dark with thick grey clouds and soon a heavy rain began. The cool wind and the sound of raindrops created a pleasant atmosphere. The rain continued for nearly 2 hours. People rushed for shelter while children enjoyed playing in the rain. Trees looked fresh and birds took refuge on rooftops. The streets were almost empty and markets closed early. Although some areas experienced waterlogging, the rain brought relief from the intense summer heat. After the rain stopped, the sky became clear and the surroundings looked clean and refreshed. It was a beautiful and memorable rainy day. That is how you have to write down your answer. See how I have used some adjectives and adverbs also, like pleasant, sound of raindrops. Wind को describe करने के लिए I've used the word cool. To describe the clouds I've used thick grey, right? So you have to make sure कि whatever you're talking about आप उसके बारे में proper detail में बात करो. Now moving on, 5 quick exam tips. सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली कि आपको किस चीज़ के बारे में बात करनी है. डू यू हैव टू टॉक अबाउट अ पर्सन, प्लेस और इवेंट. देन थिंक ऑफ 3 or 4 पॉइंट्स. फॉलो दैट क्लियर स्ट्रक्चर विच वी हैव टॉक्ड अबाउट. इंट्रोडक्शन सबसे पहले, देन कम्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मेन थिंग एंड देन द कंक्लूडिंग लाइन इन द एंड. डोंट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड, मेक श्योर टू यूज सिंपल सेंटेंसेज. और लास्ट में आफ्टर यू रिटन द आंसर प्लीज चेक कि आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे भी बच्चों के बहुत ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो कट होते हैं. नाउ मूविंग ऑन, always remember कि good writing is not about using fancy words. Just make sure to follow that structure, the format that we have talked about, and it will be very easy for you to write down the answer of descriptive paragraph. I hope आपको बहुत अच्छे से clear हो गए कि एग्जाम में इस चीज़ को कैसे आंसर करना है. If you found this video helpful, please like the video and share it with your classmates who are also preparing for their exams. I'm Kirti from Planet Spark and I'll see you in the next lesson. Thank you.